Good morning to all of you. Welcome you all on the YouTube channel of Amal Life Science Academy. My name is Pankaj Aman and I have qualified CSIR NET GET and working as an assistant professor at Jayaprakash University. Today we will talk about the development of tetrapod limb, which is a very important topic for the CSIR NET. And this tetrapod limb development will carry at least 4 to 8 marks in CSIR NET. Before beginning this chapter, we have to understand what is limb. Actually, we will talk about the tetrapod limb. That means vertebrates tetrapod. That means ki 4 limb vertebrates. And before going to detail in this topic, we will see what are the anatomy of limb. So we will see the anatomy of limb. In this, the first point is the name denotes, as the name denotes, tetrapods. That means 4-limbed vertebrates, which means amphibians, reptiles, birds, and mammals. These are the tetrapod vertebrates. And the second point says the bone of any tetrapod have at least these 3 regions, such as the first region is proximal region, and which is known as stylopod. Actually, this stylopod contains humerus in forelimb and femur in hind limb. This stylopod is just adjacent to the body wall. And the next point is zygopod. Zygopod is the second part which is found in between the stylopod and autopod. In this zygopod, radius and ulna, which is found in forelimb, and tibia and fibula, which is found in hind limb. This zygopod is found in the middle region, as I have told earlier. The next point is autopod, which is distal part of forelimb or hind limb. This autopod contains carpals or fingers in forelimb and tarsals and toes in hind limb. And the next point is finger and toe can be referred to as phalanges and more generally digits. So the next slide says all about the figure of tetrapods. Actually, the first of all, we have to see that these limbs development actually takes place from posterior lateral plate mesoderm. In vertebrates at developmental stage, early developmental stage, there are 2 types of lateral plate mesoderm. First is anterior lateral plate mesoderm, and the second is posterior lateral plate mesoderm. Then this anterior lateral plate mesoderm forms heart, which is shown here, and the second is posterior lateral plate mesoderm. This posterior lateral plate mesoderm actually forms somatic regions of many limbs, such as forelimb or hind limb. In this posterior lateral plate mesoderm, there is a place which is known as forelimb field. This forelimb field is actually responsible for the formation of limb bud, which ultimately results in the formation of whole limb. As the figure B suggests, we have to see the 3 dimensions of our limb, in which
if we see the hand in which the posterior side is dorsal and the palm side is ventral, and the posterior side, which is the little finger, which is little finger, is posterior side, and the toe side is also known as anterior side. And in this B figure, we also see that these are the somites. These are the somites, and just outward to the somite there is a region which is known as lymph field. This lymph field actually carries dorsal side and ventral side, posterior side and anterior side. The ventralmost part is also known as apical ectodermal ridge, which is here shown AER, apical ectodermal ridge. If we see more detail about lymph field, then you can see that the progress zone, which is found just beneath the apical ectodermal ridge, and these progress zone actually carries the mesenchymal cells, which ultimately leads to the formation of a skeletal of these limbs. And just below the progress zone, a region which is known as ZPA, zone of polarizing activity, which ultimately forms the anterior posterior side. Actually, it decides the posterior side of palm. And in the figure C, we can see that all these three regions of tetrapod limb, either forelimb or hind limb, which is the first region is known as stylopod, and second region is known as zeugopod, and the third region is known as autopod. In stylopod, the region actually organ carries humerus. In zygopod, it contains radius and ulna, and the autopod carries carpel and digits. These three regions of tetrapod limb actually contain all these four limb parts. And then the polarity or the actually side we are going to see is posterior and proximal and distal part. एक्चुअली हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पोस्टीरियर पार्ट है, ये जो हमारा पूरे का पूरे टेट्रापोड का लिम्ब है, वो लिम्ब जो है जो साइड वाला जो पार्ट होता है, वो पार्ट हमको यहाँ देखने को मिलेगा. इस पार्ट में हम एक्चुअली देख रहे हैं कि जो हमारा जो बॉडी वॉल से नजदीक वाला पार्ट है वो प्रॉक्सिमल पार्ट है, और बॉडी से जो दूर वाला पार्ट है वो डिस्टल पार्ट है. एक्चुअली डिस्टेंस का मतलब ये होता है दूरी, यानी डिस्टल का मतलब है फेलेंजेज वाला जो पार्ट होगा वो डिस्टल पार्ट होगा. एंड जो अपर पार्ट है जिससे हम लोग ये जो कैरी कर सकते हैं, जहां हम बैंड कर सकते हैं, वो एंटीरियर पार्ट हो गया, एंड उसके नीचे वाला जो पार्ट है वो पोस्टीरियर पार्ट हो गया. ऐसे ही आप किसी और के लिम्ब में भी देख सकते हैं, जो कि जैसे कि यहाँ है, ये आपका स्टाइलोपॉड हो जाएगा, ये आपका जियोगोपॉड हो जाएगा, एंड ये आपका ऑटोपॉड हो जाएगा, जैसे कि आपको कलर में डिनोटेड है. And the next slide says about positional information needed to construct the limb has function three-dimensional coordination system. Actually, this positional information constitutes three-dimensional coordination system. These three-dimensional coordination system, in which first coordination system is proximal distal axis. पहला जो डायमेंशन है इसमें
वो है आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस, जिससे आप ये कह सकते हैं क्लोज और फार वाला रीजन, जैसे कि शोल्डर से फिंगर आप कह सकते हैं, या हिप से टो कह सकते हैं, ये हाइंड लिम्ब के केस में, और ये आप फोर लिम्ब के केस में शोल्डर टू फिंगर कह सकते हैं। एंड द सेकेंड डायमेंशन इज एंटीरियर टू पोस्टीरियर रीजन आप कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि थंब टू पिंकीज, यानी कि जो थंब वाला जो पार्ट है वो आपका एंटीरियर पार्ट हो जाएगा, एंड पिंकीज यानी कि लिटिल फिंगर जो है वो एकदम सबसे छोटी वाली जो उंगली है वो वाला पार्ट जो होगा वो पोस्टीरियर साइड हो जाएगा। एंड द तीसरा डायमेंशन जो हम लोग देखेंगे वो होगा डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस, जैसे कि हमारा पाम वाला रीजन और हमारा नकल वाला रीजन। जो पाम वाला रीजन है वो वेंट्रल पार्ट होगा, बहुत ध्यान से इसको पिछली डायग्राम में हमने बता दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज है, ये आपको समझना चाहिए। और नकल वाला जो रीजन है वो है डॉर्सल रीजन, जो कि हम ये पूरे के पूरे 3 डायमेंशन सिस्टम पढ़ेंगे कि ये तीनों डायमेंशन कैसे स्पेसिफाई होता है, और उसके लिए जो पोजिशनल इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं लिम्ब बर्ड के बारे में। लिम्ब बर्ड कह रहा है कि ये लिम्ब बर्ड जो होता है फर्स्ट विजिबल साइन है लिम्ब डेवलपमेंट का, ठीक है। एंड द सेकेंड पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट कहता है कि फेप मैपिंग स्टडीज ऑन सैलामेंडर क्या बताता है कि सोमेटिक रीजन्स जो होते हैं, न्यूरल प्लेट मेसोडर्म जो होता है वो एक्चुअली वो न्यूरल प्लेट मेसोडर्म ही लेटरल प्लेट मेसोडर्म ही लिम्ब का फॉर्मेशन कराता है। तो ये सैलामेंडर के अंदर जब फीड मैपिंग करते हैं तो हमको पता चलता है कि सोमेटिक रीजन जो होता है लेटरल प्लेट मेसोडर्म का, वो कहीं ना कहीं लिम्ब के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्स दैट मेक अप लिम्ब बर्ड आर डेराइव्ड फ्रॉम पोस्टीरियर लेटरल प्लेट मेसोडर्म। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जो लिम्ब बर्ड का फॉर्मेशन करता है, वो लिम्ब बर्ड का फॉर्मेशन जो होता है वो आपको, ये जो लिम्ब बर्ड का फॉर्मेशन है वो आपको पोस्टीरियर लेटरल प्लेट मेसोडर्म से है, पोस्टीरियर लेटरल प्लेट मेसोडर्म, ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं यहां से मिल रहा है। अब अगर इसको डायग्रामेटिकली हम देखें तो ये है आपका लिम्ब फील्ड, ठीक है। ये जो पूरी की पूरी डायग्राम है, इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। सेंटर वाला जो पार्ट है वो फ्री लिम्ब कहलाएगा, एंड उसके राइट साइड वाला जो पार्ट है वो शोल्डर गर्डल कहलाएगा, और जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है पेरीब्रैंकियल फ्लैंक टिश्यू कहलाएगा। और इन तीनों को अगर हम मिला दें तो इसको हम लोग बोलेंगे लिम्ब फील्ड, इसको हम लोग बोलेंगे लिम्ब फील्ड। दिस इज कॉल्ड लिम्ब फील्ड। एक्चुअली इन लिम्ब फील्ड फ्री लिम्ब रीजन जो है वही आपको लिम्ब का फॉर्मेशन कराता है। अगर फ्री लिम्ब रीजन जो है अगर किसी कारण से वहां से रिमूव कर दिया जाता है तो जो आसपास की सेल्स हैं, यानी कि शोल्डर गडल वाले सेल्स या पेरीब्रैंकियल फ्लैंक टिश्यू जो हैं, वो कहीं ना कहीं लिम्ब फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये गिल्स वाले रीजन है, ये प्रोनेफ्रिक किडनी, और ये आपको एक्चुअली जो सोमाइट हम जो दिखा रहे थे वो सोमाइट वाले रीजन है। यहाँ आपको इस डायग्राम में, बगल वाले डायग्राम में बहुत कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इफ ऑल फ्री लिम्ब सेल्स आर रिमूव, जितने भी फ्री लिम्ब सेल्स जो हैं उनको अगर हम रिमूव कर दें, कह रहे हैं कि उसके बावजूद ए स्टिल लिम्ब विल फॉर्म from the additional ring of the cells that surrounding the area that would normally form a limb। जैसे कि हमने बताया है कि लिम्ब फील्ड के जितने भी फ्री लिम्ब के सेल्स हैं अगर हम रिमूव कर दें, उसके बावजूद जो होगा वो आपका लिम्ब का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो कैसे होगा? बाय द हेल्प ऑफ सराउंडिंग सेल्स विच इज नोन एज शोल्डर गर्डल सेल्स और पेरीब्रैंकियल फ्लैंक टिश्यूज। एंड द सेकंड पॉइंट इज surrounding if these surrounding ring cells, पेरीब्रैंकियल फ्लैंक टिश्यू और शोल्डर गर्डल इज इंक्लूडेड इन द रिमूव टिश्यू, यानी कि पूरी की पूरी लिम्ब फील्ड को जब हम रिमूव कर देंगे तो किसी भी लिम्ब का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये CSIR में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये CSIR नेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा।
and then this larger region representing all the cells in the area capable of forming limb on their own limb field. जैसे कि हमने बताया है, ये वही बात कह रहा है. अब कह रहा है कि even the early limb bud possesses its own organization, such as main direction of growth occurs along the proximal distal axis, somites to ectoderm, and laser growth occurring along the dorsal ventral axis of posterior. Actually जो ग्रोथ होता है लिम्ब का वो फ्रॉम द प्रॉक्सिमल टू डिस्टल डायरेक्शन में होता है. तो ये मेन डायरेक्शन जो होगा वो आपको यहां बता रहा है. अब कह रहा है कि द लिम्ब फील्ड इज फर्दर रिकॉग्नाइज्ड बाय 3 फंक्शनली डिस्टिंक्ट डोमेन. 3 फंक्शनली डिस्टिंक्ट डोमेन में रिकॉग्नाइज होता है. जैसा कि पहले जोन की अगर बात करें तो हमने बताया था कि प्रोग्रेस जोन विच इज ऑल्सो नॉन एज मेसेनकाइमल रीजन, जो कि अनडिफरेंशिएटेड जोन होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. ये मेसेनकाइमल रीजन जो होता है वो अनडिफरेंशिएटेड रीजन होता है, और पहला जो है वो हाईली प्रोलिफरेटिव होता है. ठीक है. एंड द सेकेंड रीजन इज ऑल्सो नॉन एज जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी ZPA. फर्स्ट रीजन इज प्रोग्रेस जोन, second region is ZPA. This ZPA is just most posterior part of limb field. ठीक है. And the third region is AER, which is very important for CSIR. very important. CSIR के लिए बहुत ही important है. ये बहुत ही important है आपको CSIR के लिए. कहते हैं कि एपिकल एक्टोडर्मल रिज जो होता है वो एक्चुअली जो मोस्ट डिस्टल पार्ट होता है वो होता है, और यही आपको कहीं ना कहीं सिग्नलिंग प्रोड्यूस करता है, जिससे जाके आगे चल के अब हॉक्स जीन आइडेंटिफिकेशन जो है ये क्या कहता है. हॉक्स जीन जो होता है जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है लिम्ब के स्केलेटल के आइडेंटिफिकेशन के लिए. वो आपको मेसेनकाइमल रीजन में एक्सप्रेस होता है, और सारे के सारे ये स्टाइलोपॉड, जियोगोपॉड एंड ऑटोपॉड का फॉर्मेशन कराता है. फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल हॉक्स जीन इन द लिम्ब अगर हम देखें तो कहेंगे कि 5 प्राइम रीजन ऑफ ABD लाइक पोजिशंस पैरेलॉग 9 to 13 हॉक्स A एंड हॉक्स D जीन कॉम्प्लेक्स अपीयर टू बी एक्टिव इन लिम्ब बड फॉर्मेशन. लिम्ब बड फॉर्मेशन में एक्चुअली क्या होता है कि हॉक्स A, हॉक्स D and sometimes हॉक्स C is also responsible for the formation of a proximal to distal part of limb. अब इसमें बात करें कि लिम्ब बड में ये सारे के सारे जीन्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं. अगर हम इनमें नॉकआउट करा दें, इस जीन में नॉकआउट करा दें, ठीक है ना, तो ये हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो हॉक्स है, हॉक्स 9 to हॉक्स 13, यानी कि हॉक्स 9, हॉक्स 10, 11, 12 and 13 will be responsible for the formation of proximal to distal part of limb, either forelimb or hind limb. And if we see the detail about the hocks, then hocks 9 and hocks 10 paralog is स्पेसिफाई करता है ये स्टाइलोपॉड को. स्टाइलोपॉड को स्पेसिफाई कौन करता है? हॉक्स 9 एंड हॉक्स 10. देन हॉक्स 11 जो होता है पैरालॉग जो होता है वो स्पेसिफाई करता है जियोगोपॉड को. बहुत ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हॉक्स 12 एंड हॉक्स 13 जो है वो ऑटोपॉड को स्पेसिफाई करता है. ये जो है CSIR के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये CSIR में बहुत बार पूछा जा चुका है. ये बहुत ही हॉट टॉपिक है CSIR के लिए, इस बार भी पूछा जाएगा. अब इस डायग्राम को अगर आप देखें तो बहुत ध्यान से देखने में आप सबसे पहले इस डायग्राम में ये समझिए कि ये फोर लिम्ब के बारे में है, ये हाइंड लिम्ब के बारे में. इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान है. फोर लिम्ब में जो है यहाँ देखिएगा अगर आप, तो फोर लिम्ब में के स्टाइलोपॉड में ये देखिए, ये फोर लिम्ब के स्टाइलोपॉड में जो एक्सप्रेशन हो रहा है तो हॉक्स 9 एंड हॉक्स 10 का एक्सप्रेशन. द फॉर्मेशन ऑफ स्टाइलोपॉड ऑफ फोर लिम्ब इज टेक्स प्लेस बाय द एक्सप्रेशन ऑफ हॉक्स 9 एंड हॉक्स 10. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा. हॉक्स 9 एंड हॉक्स 10 जो होता है वो स्टाइलोपॉड का फॉर्मेशन कराता है. अब जियोगोपॉड की बात करें तो जियोगोपॉड के फॉर्मेशन में आप देख रहे हैं कि मेनली हॉक्स 11 रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो हॉक्स 10 का एक्सप्रेशन है
स्लाइटली हॉक्स्टेन का भी एक्सप्रेशन होता है, लेकिन मेनली आपको हॉक्स्टेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ज़िगोपॉड फॉर्मेशन करने के लिए। अब ऑटोपॉड की बात करें तो ऑटोपॉड के फॉर्मेशन में मेनली जो रिस्पॉन्सिबल है वो हॉक्स 12 एंड हॉक्स 13, ये ऑटोपॉड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट समटाइम्स बहुत ही लेसर क्वांटिटी में हॉक्स 11 का भी एक्सप्रेशन होता है। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि आप फोरलिम में कौन कौन सी जीन का एक्सप्रेशन होता है, हॉक्स 9 और हॉक्स 10 का आपको स्टाइलोपॉड फॉर्मेशन में, यानी कि ह्यूमरस कहिए एक तरह से, उसके फॉर्मेशन में, ज़िगोपॉड के फॉर्मेशन में हॉक्स 10 और हॉक्स 11 में, यानी कि मेनली हॉक्स 11 का रोल होता है। और ऑटोपॉड का जो रोल होता है वो हॉक्स 13 या हॉक्स 12 के एक्सप्रेशन से होता है। अब हम देखेंगे हाइंडलिम के बारे में। हाइंडलिम और फोरलिम में बहुत ही छोटा सा अंतर है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हॉक्स 9 इज नॉट एक्सप्रेस इन द हाइंडलिम, ओनली हॉक्स 9 इज नॉट एक्सप्रेस इन द हाइंडलिम, एंड उसके बाद जो भी चीजें हैं, जो भी एक्सप्रेशन है वो सेम है। यानी कि स्टाइलोपॉड के फॉर्मेशन में आपको हॉक्स 10 का ही केवल और केवल रोल है। आपको ज़िगोपॉड के फॉर्मेशन में आपको हॉक्स 11 का बहुत ज्यादा रोल है, हॉक्स 11 का ज्यादा रोल है। सम स्लाइटली हॉक्स 10 का भी रोल है, लेकिन मेनली पूछे तो हॉक्स 11 का रोल है। ऑटोपॉड की बात करें तो ऑटोपॉड में मेनली रोल है आपका हॉक्स 12 एंड हॉक्स 13 का। तो एक तरह से ये सारी की सारी चीजें हैं। हाइंडलिम में आप ये याद रखिएगा कि हॉक्स 9 का एक्सप्रेशन नहीं होता है। बाकी आप स्टाइलोपॉड, ज़िगोपॉड एंड ऑटोपॉड के हिसाब से बहुत ही अच्छे से याद रख सकते हैं। अगर कुछ म्यूटेशंस की बात करें तो ये है वाइल्ड टाइप का फॉर्मेशन और ये है कुछ म्यूटेंट का फॉर्मेशन। अगर हॉक्स A11 या हॉक्स D11 दोनों डिफिशियंट हो जाता है, अगर हॉक्स A11, ये किसकी बात है, ये फोरलिम की बात है, तो अगर डिफिशियंट हो जाता है तो हॉक्स 11 के डिफिशियंट होने से आप जानते हैं ज़िगोपॉड का फॉर्मेशन नहीं होता है। यानी कि जो ज़िगोपॉड का फॉर्मेशन है, यहाँ पे देखिए ये है आपका ज़िगोपॉड, ये है आपका स्टाइलोपॉड। तो यहाँ जो ज़िगोपॉड का फॉर्मेशन है वो एकदम से फ्यूज्ड हो गया है, डिफॉर्मिटी देखने को मिल रहा है। डिफॉर्मिटीज टेक्स प्लेस इन ज़िगोपॉड, ठीक है। तो ये होता है। अगर हॉक्स 13 में म्यूटेशन हो जाए तो फिंगर्स जो होंगे वो फ्यूज्ड हो जाएंगे, या आपको वेब्ड फिंगर देखने को मिलेगा। तो या यूरिनोजेनिटल सिस्टम में जो है वो आपको कहीं ना कहीं डिफॉर्मिटीज देखने को, मालफॉर्मेशंस देखने को मिल जाएगा। देन दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट। आगे हम लोग जो होगा वो डिटेल देखेंगे आगे लिम्ब डेवलपमेंट के बारे में। थैंक यू।